Hello and welcome everyone to your dearest channel AG Classes. After a long time, I have decided once again to make videos for at least students of class 6 to 10. So this one is a sample paper which was released 2 days before, and today we will be solving the section A portion of that MCQ pattern for ICSE 2022 maths. Okay, so first of all, in this video you will see the section A, which consists of 16 questions equal to 16 marks. Okay, and then in the next video I will give you the section B portion, and after that section C. Full marks in this paper is 40. Okay, so the first question says that A is a matrix. Is from the matrices chapter. They are asking that A is a matrix of order 3 into 2 and B is a matrix of order 2 into 2. So they are asking the question that what will be the order of AB if we multiply these two, what will be the order of this. Okay, so first of all, order निकालने का सबसे easy तरीका ये होता है कि you will simply write this one in this fashion and the next one जस्ट उसके बगल में आप लिख सकते हो 2 into 2 इस ऐसे फैशन में. ठीक है, एंड जब भी आमने सामने में लिखते हैं तो सिंपली ये दोनों को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, ये दोनों आपस में कॉमन हो गया, जो भी सामने वाला होगा. ठीक है, ऑलवेज़ ये सामने वाला है सही कॉमन होता है. ऐसा इस तरह का एक डब्बा बना सकते हो, बॉक्स बना सकते हो, एंड जो रिमेनिंग बच गया वो हमारा आंसर होगा ए बी का ऑर्डर का. सो ऑर्डर ऑफ ए बी, द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3 into 2, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन मार लीजिएगा जो भी इसका ऑप्शन होगा. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वाज ए 3 into 2. ओके, so this was the order of matrix. Second question, they are saying that in GST, which is chapter number 1, goods and sales and tax, whatever you want to say, goods service tax भी होता है किसी किसी में. ठीक है, तो whatever it is, GST में बोल रहा है कि इंट्रा स्टेट में आपका GST कितना % लगता है. तो फॉर इंट्रा स्टेट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट आधा आधा हो जाता है, तो द आंसर विल बी 50% ऑफ द टैक्स विच इज़ बी. ओके, और अगर यही इंटर स्टेट रहता, सपोज करिए अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, इफ़ दे वर आस्किंग इंटर स्टेट, then it would have been 100%. Okay, now moving on to the third question. The third question, there is a diagram given in which they are saying that this is a trapezium. Suppose करो similarity chapter से ABCD is a trapezium and this is a diagonals joining ABC and BD and this is O. Okay, now they are showing that if we are gonna prove, and these are two lines which are parallel. Okay, now they are showing that if we are proving these two triangles similar, suppose AOB, so what will be the another triangle which will be similar? So from the diagram you can notice that this angle and this angle will be equal, vertically opposite angle, and this angle is also equal to this angle, alternate angle. So we are clearly seeing that OAB is or AOB is similar to triangle COD. मतलब हम लोगों को COD के साथ भी प्रूफ करना होगा. यही दोनों को ट्रायंगल्स को वी कैन सिंपली से बाय एंगल प्रॉपर्टी दैट दे आर सिमिलर. या वेरी इजी क्वेश्चन, बट जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी सारा है इस सैम्पल पेपर में, हम लोग को देखने को मिलेगा और भी आगे. तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 16. तो 9 and 16 का मीन प्रोपोर्शन माने क्या होता है, आप यू हैव टू राइट 9/x एंड विच इज़ इक्वल टू x/16. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गेट 144 इज इक्वल टू x square, and you can notice in the options they have also given this all as an answer. So this is what is tricky in MCQ based questions. Okay, we all think that MCQ based questions सारे बहुत आसान होगा. हाँ, आसान तो होगा कभी कभी, लेकिन कभी कभी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा. जैसे कि ये वाला आंसर भी दिया, जैसे हम लोग निकाले, बोले अरे 144 इज़ गिवन, चलो उसको मार्क कर लो, पता चला वो रॉन्ग हो गया. तो पूरा सॉल्व करते हैं. फिर क्या हो गया, 144 को रूट
and 12 is the answer. So the D option will be the correct one for question number 4. Now moving on to question number 5. The question number 5 is clearly asking, they have given the principle. This is from the banking chapter. Okay, banking chapter में जो प्रिंसिपल गिवन रहता है, डिपोजिशन करना है 500 करके पर मंथ, एन हम लोग लिखते हैं ईयर्स को 6 मंथ्स, दे हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू अ मंथ्स. अगर आपका ईयर में गिवन रहेगा तो आपको कन्वर्ट करना होगा मंथ्स में. दिस वाज द ट्रिक बेस्ड ऑन बैंकिंग. नाउ दे हैव ऑल्सो मेंशन मैच्योरिटी वैल्यू विच इज़ गिवन एज ₹3,300. नाउ दे नीड टू फाइंड, दे आर आस्किंग अस इंटरेस्ट. मैच्योरिटी वैल्यू का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा P इंटू एन प्लस आई. वी ऑल नो ईच एंड एवरीथिंग, खाली हमारा आई हमको निकालना है. तो यू कैन मेक अनदर फार्मूला यूजिंग दिस फार्मूला. आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी माइनस पी इंटू एन. तो बस इसमें हम लोग पुट कर देते हैं. आई हमको निकालना है, टेक इट इन द लेफ्ट हैंड साइड. मैच्योरिटी वैल्यू हो रहा है 3,300 माइनस 500 इंटू 6 विच विल बी 3,000. तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा ₹300. 3,300 में से 3,000 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो इट गिव्स अस 300. सो आंसर इज़ बी. आई होप आपका ये पाँचों का पाँचों काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसका PDF भी दे देंगे हम स्क्रीनशॉट बना के, मतलब यही सॉल्व पेपर का. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. सो द क्वेश्चन नंबर 6 दे हैव मेंशन्ड इज़ अ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन सेट बताना है आपको. एंड दे हैव मेंशन्ड द डायग्राम विच इज़ लुकिंग लाइक दिस 0 1 2 या -1 -2 एंड -3. दे हैव ड्रॉन अ लिटिल बिट यहाँ से ऐसे एंड यहाँ तक का उन्होंने ड्रॉ किया है. और इसका आपको बताना क्या है, दे हैव मेंशन्ड अ वेरियस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सेट. आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करना है. तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. दिस इज़ मेंशनिंग क्लियरली कि -3 से x जो है ग्रेटर हो रहा है, क्योंकि इस तरफ में हम लोग जा रहे हैं. ग्रेटर इन माइनस केस -3 इज़ ग्रेटर, -2 इज़ ग्रेटर दैन -3. आई बेग योर पार्डन, -3 लेस हो जाता है -2 से. ठीक है, तो इस तरफ में हम लोग ग्रेटर पे जा रहे हैं. तो मतलब क्या हो रहा है कि x का वैल्यू जो होगा वो आपका ग्रेटर होगा किससे, -3 से. और -3 पे वो लोग एक सर्कल बनाया, मतलब उसको भी इंडिकेट किया, विच मीन्स दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर ऑल्सो एंड इक्वल ऑल्सो दैन -3. नाउ लेसर किससे है, लेसर है आपका 2 तक का रुक गया है, लेकिन लेस दैन के साथ इक्वल टू अगर हम लोग लगा देते हैं 2, तो दिस वन इज़ अ वेरी मच ग्रेट गुड आंसर. बाकी आगे का तो पैटर्न आपका एकदम सेम ही है. फॉर ऑल x is such that x belongs to real number -3 greater than x which is less than 2. the option is D. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम आपको कंसेप्ट भी देते जा रहे हैं, ये नहीं कि सिंपली आपके लिए MCQ सॉल्व कर रहे हैं. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ फ्रॉम APGP, मतलब AP का पोर्शन जो है. दे हैव मेंशन्ड दिस सीरीज़ 1 9 17. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो रहा है 1. कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं 8 आ रहा है. 17 - 9 कर सकते हो, 9 - 1 कर सकते हो, जो भी करोगे सब इक्वल आना चाहिए. तो 8 इज़ द कॉमन डिफरेंस. आपको इसके बाद के 2 टर्म्स बताने, काफ़ी इजी. सिंपली 8 को ऐड कर देना है. एक बार 17 में 8 ऐड करोगे तो 25 होगा, एंड फिर इसमें 8 ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा. तो ऑप्शन हमारा C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आंसर नंबर 7. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 they are saying that if triangle ABC is similar to triangle QRP, okay, they have already mentioned that these two triangles are similar. okay भाई, ये अच्छी बात है. अब आपको corresponding sides बताना है, काफ़ी easy. just see how I'm gonna write. सिर्फ विजुअलाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा. AB the first two divided by QR, AB divided by QR is equal to next one BC and the next one RP. okay, which is equal to, अब क्या बच गया, देखिए ये दोनों को हम लोग लेफ़्ट कर दिया, तो AC डिवाइडेड बाय यहाँ का ये दोनों को लेफ़्ट किया था डिवाइडेड बाय QP. अब ना ऑप्शन से आप मार्क करिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन में ये दोनों वाला मिल जा रहा है आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, बाकी सब देखिएगा फॉल्स होगा. तो 8 के आंसर A इज़ करेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग x बिलोंग्स टू होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पूरा नेचुरल नंबर की तरह होता है। हमारे पास एक सॉल्यूशन का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक इक्वेशन गिवन है, -x इज़ ग्रेटर देन -7। अब इसमें से हम लोग को सॉल्यूशन सेट से पहचानना है, आंसर्स में सॉल्यूशन सेट इज़ गिवन, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट लीनियर इक्वेशन देन यू नो कि जब भी हम लोग -1, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 है, तो माइनस से जब भी डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, मतलब डिवाइड करेंगे हम लोग क्या, -1 फ्रॉम बोथ साइड्स या टू बोथ साइड्स, ठीक है, टू बोथ साइड्स लिख सकते हो आप। तो हम लोग जैसे -1 को डिवाइड करेंगे, ये तो x हो गया, एंड माइनस जब भी डिवाइड होगा तो सिंपली ये चेंज ऑफ साइन हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर -1 से डिवाइड हुआ था तो x लेस दैन 7 और होल नंबर गिवन है, तो सॉल्यूशन सेट आपका 0 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस वन विल बी द आंसर क्लियरली। द बी ऑप्शन इज करेक्ट। I hope you have get it. Question number 10. The question number 10 they have said 4x square minus 7x plus 2 is equal to 0. इसके दो रेशियोज़, मतलब इसके दो रूट्स हैं 1.390 एंड 0.359। तो इसको सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दिया यार। ये आंसर तो यही आया था 0.390 एंड 0.359। तो इसको अगर, ये तो MCQ है तो इसमें तो ऑलरेडी गिवन हो गया आंसर, ठीक है। अगर इसमें आंसर नहीं गिवन होता तो आप हम लोग सॉल्व कैसे करते, a इज़ इक्वल टू 4 हो जाता है, b इज़ इक्वल टू -7 हो जाता है, c इज़ इक्वल टू 2 हो जाता है। हो सकता है हाँ पूछ रहा है प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों सही है कि नहीं, प्रूफ करो। तो श्रीधाचार्य मेथड लगाना है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको लगाएंगे, हमारा ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. In question number 11 they are saying that these numbers 1.5, 3, x and 8 are in proportion. So those of you who have already studied about ratio and proportion, they might do this one very correctly, that this one divided by this one is equal to this one by this one. This is what a proportion mean. रेशियो में हम लोग क्या लिखते थे, अगर it was given in ratio तो हम लोग इस2 के फॉर्म में लिखते थे ना, ये वाले फॉर्म में लिखते थे। और प्रोपोर्शन माने क्या हुआ कि दोनों का जो फ्रैक्शन होगा, ये दोनों को हम लोग अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज़ द नेक्स्ट टू नंबर्स। ओके, दिस इज़ व्हाट प्रोपोर्शन जनरली मीन्स एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेशियो एंड अ प्रोपोर्शन। ओके, नाउ इसको सिंपली सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको इसको हटा देते हैं, ये 30 हो जाएगा, तो 15 2 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, तो x का वैल्यू हो गया 4। द आंसर इज़ बी। तो MCQ क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है, बट कंसेप्ट को अपना क्लियर रखेंगे, सब सम्स आराम से होता रहेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे आर सेइंग दैट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, इसको आपका रिमाइंडर निकालना है। अगर हमारा फैक्टर जो है x प्लस 3 है, इसको यूज़ करना, मतलब इसको डिवाइड करना है इससे, एंड वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। सो दिस सम्स यू कैन डू इट इन 2 वेज़, बट हमारा MCQ का जो पैटर्न है उसमें हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को सेव करने का मेथड सीख लेना है। ये तो बहुत काम आने वाला है, कैलकुलेशन का टाइम सेविंग मेथड्स, MCQ को कैसे हम लोग सेव करना है टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल x इज़ इक्वल टू -3 कर लेंगे। फैक्टर थ्योरम अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 करते हैं, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट x इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। अब ये -3 को सिंपली इस पूरे इक्वेशन में जो ये fx इक्वेशन गिवन है, इस पर हम लोग पुट कर लेंगे f ऑफ -3, तो हम लोग का हमारा आंसर आ जाएगा -3 स्क्वायर -7 इंटू -3 -1, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, माइनस 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 प्लस 21 -1, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 21 39, 39 - 1 38। सो द आंसर इज़ 38 एंड द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज़ बी। आप इसको जनरल मेथड से भी कर सकते जो क्लास 8 में पढ़े हो, x प्लस 3 और डिवाइड करना 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, इस मेथड से भी करोगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली 38 ही आएगा। यू कैन ट्राई इट।
for your assurance कि whether this one is correct or not, you can try the old or vintage method, but it is old is gold always. Okay, यहाँ पर क्या होता है कि ना मिस्टेक होने का बहुत कम चांसेस है. यहाँ अगर किसी को नहीं पता होगा कि माइनस इंटू माइनस करने से प्लस होता है तो someone might end up having a different answer. Okay, now moving on to question number 13. They have mentioned that the nth term, which is an is equal to 73. They have already given this one. They have also given the AP series 3, 8, 13, 18, comma dot dot dot. This is the AP series. That's all what is needed for this sum to solve. First one, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A. This is the first term. Now the common difference D. 8 माइनस 3 कर दो तो देखो 5 आ गया. सभी में 5 होना चाहिए. देखिए सभी में 5 हो रहा है तो D भी मिल गया. तो अब सिंपली an का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 होल D. सब निकल गया आएगा. सिंपली आपको n निकालना है, मतलब सब दिया हुआ है, आपको सिंपली n निकालना है. 73 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 नॉट गिवन इंटू D. इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 5n माइनस 5 और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 73. ये माइनस 2 हुआ, वहाँ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा. दैट विल बी 75. n इज इक्वल टू 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25. n इज इक्वल टू 15 इज द आंसर, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज पे आ रहे हैं, तो होप सो आपको समझ में आता होगा. अगर समझ में आ रहा है और ये मेथड आपको अच्छा लगा, आपको चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके और मैं सेक्शन बी और जितने भी पेपर्स आएंगे सबको सॉल्व करके यूट्यूब में देंगे वीडियो. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये गिवन है. आपको प्रूव करना है कि ये रियल रूट्स होगा या इक्वल रूट्स होगा, ये वाला, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला चीज़. ठीक है, मतलब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू यू कैन गेट फ्रॉम हेयर. मतलब इसका जनरल इक्वेशन याद होगा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0. तो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1. ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है, अगर ये हम लोग निकालते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 4ac अगर आ जाता है सपोज़ करिए, तो ये हम लोग बोल सकते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, तो देखते हैं कि ये आता है कि नहीं. बी स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 4 इंटू 1 किया तो ये भी 4 हो गया, मतलब कि 4 इज़ इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया. मतलब हमारा जो फर्स्ट एजम्पशन था वही करेक्ट हुआ. तो बाकी एजम्पशन में क्या होगा, वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, आप फिर भी देख सकते हैं. मतलब ये पूरा पैटर्न देने का मेन मकसद क्या है कि दीज आर द पोर्शंस टू लुक इन फॉर वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेमेस्टर. दीज आर द पोर्शंस. जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन को आपको थोड़ा रिवीजन कर लेना होगा कि ये वाला केस तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या आ सकता है. व्हेन बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 4ac, समटाइम्स बी स्क्वायर इज़ लेस दैन 4ac, तो उसके रीजंस भी हम पढ़ लेंगे ताकि हमारा आगे के लिए सफ़र आसान हो सके. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, इट्स अ स्टेटमेंट इज़ गिवन देयर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन, यू हैव टू मेंशन विच वन इज़ नॉट ट्रू. सो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसेप्चुअल बेसिस. कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्ट चाहिए भाई. अगर अंदर का मैट्रिसेस का कंसेप्ट नहीं होगा तो ये करना बहुत हार्ड है. तो इसका आंसर जो है हम बता दे रहे बी होगा. इसका आंसर होना चाहिए ऑल नल मैट्रिसेस. नल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, जो ये 0 0 0 0 होता है. तो इसका ज़रूरी नहीं कि आपका ये सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो. देखिए ये भी एक नल मैट्रिक्स है, ये भी एक नल मैट्रिक्स है. ठीक है, और ये भी एक नल मैट्रिक्स हो सकता है. तो इसका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है कि सब नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है. स्क्वायर मैट्रिक्स के बनिस्बत माने आई वांट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट अ स्क्वायर मैट्रिक्स लुक्स लाइक. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, जो उसका मतलब A B C D, सपोज लाइक दिस वन इज़ 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब जितना रोज़ होगा उतना ही कॉलम्स होगा. ठीक है, इक्वल होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 हो सकता है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, आगे चलता रहेगा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट वन फॉर टुडे. द क्वेश्चन इज सेइंग x minus 2 is a factor. Okay, they are already mentioning that this is a factor
of the equation given x cube plus 2x square minus 13x plus k. The factor means whenever anything is a factor we simply put equal to 0. मतलब अगर फैक्टर हो रहा है तो मतलब उसका फैक्टर हम लोग करते हैं तो दैट इक्वेशन ऑलवेज बेयर्स 0. ओके, तो x माइनस 2 एक फैक्टर गिवन है. तो अगर हम लोग जानते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2. दिस इज़ व्हाट वी विल गेट एंड सिंपली x को यहाँ पर पुट करेंगे एंड k का वैल्यू को निकाल लेंगे. तो देखिए क्या होता है. 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 8 हो गया माइनस 13x. अच्छा 13x के साथ तो 2 इंटू करना है, माइनस 13 2 ज़ा 26 प्लस k इज इक्वल टू 0. k को इधर ही रहने दो, 26 को उधर भेज दो. 26 माइनस 8 8 ज़ा 16 हो गया और ये यहाँ गया माइनस. तो देयर फॉर k इज इक्वल टू 10. दिस इज द सेक्शन A portion till here. Thank you for watching the whole video. If you have watched it, you have cleared your doubts. For question number 16 तक का जितना भी हमने बताया, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए. कमेंट करके इस सेक्शन भी जल्द से जल्द हमको अपलोड करने के लिए फ़ोर्स करिए. हम जल्द ही आपके लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं. हम ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे, कर चुके हैं, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा. जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही हमारा भी इनिशिएटिव रहेगा. थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग AG क्लासेस.